कॉर्पोरेट्स या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हम मिलते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि दे आर नॉट वेरी मच known about the legality, about the company formation and what kind of certification they need and what kind of legality they should be maintained. So उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं। फर्स्ट चीज ये होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर हमें रखना है, LLP कहे, पार्टनरशिप करे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर हमें क्या रखना है। फोर्ब्स भी है, उन्होंने भी ये प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप 1 पे रखा है कि यू हैव टू प्लान योर बिजनेस स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग हमें ये फोकस करना है कि हम क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास को फाउंडर है, वी शुड हैव अ को फाउंडर अग्रीमेंट। थर्ड थिंग, वी नीड टू हैव अ बिजनेस पार्टनरशिप्स अग्रीमेंट। विद वेंडर वी नीड टू हैव अ वेंडर अग्रीमेंट। अगर हम जैसे IT कंपनी है तो यू नीड टू हैव अ MSA, जिसे हम मास्टर सर्विस अग्रीमेंट कहते हैं, या SLA जिसे कहते हैं। इफ यू हैव वेबसाइट एंड ऐप, यू नीड टू हैव वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, सेम गोज विद द ऐप, यू नो। ये सारी चीजें हमें होनी चाहिए, मतलब जो भी आप डील कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी से, यू नो, वो वहां पर इन प्लेस अग्रीमेंट रखने हैं हमें। What is the right time for any limited liability partnership or a partnership to shift to a private limited? The biggest reason is if you are looking for the investment. Okay. Main focus सबका यही रहता है कि if you are looking for the investment ना, they love they will to fund in the companies which are private limited. You know, because private limited is a separate entity from the individuals. You know, company एक पूरी separate entity legally मानी जाती है, तो focus वहाँ रहता है mainly कि this is the right time you should convert it to the private limited. हर चीज के लिए एग्रीमेंट करना that is also not feasible because good faith में ही काम करना पड़ता है। एंड आज भी यही कहा जाता है कि पेपर तो पेपर है, उसकी वैल्यू तो तब है जब कोई लिटिगेशन होगा, अदरवाइज तो जबान की कीमत है और इंडिविजुअलिटी में ही दुनिया चल रही है। हाउ यू जस्टिफाई दिस? Law is very clear in the Indian Contract Act 1872. It is clearly mentioned. If you handshake, it is a contract. There is no need to have things on paper. Right. But you know, it's difficult to prove. That's why oral के साथ भी यही problem है. That's why it's good to have things in writing. Don't have agreement. At least have points in the mail. Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with Ghazal Daga. Ghazal Daga is a corporate lawyer. And when we talk about corporate lawyer, this is a need of every single entrepreneurs and business owners, because how to form the company and what way they should go ahead with the company, how to take funding and what are the legality that should be taken care if we are going for a funding or if we are running our day-to-day operation in a smooth manner. And she also operates Wisely Legal, that is a legal firm who gives services to the entrepreneurs as well as to the business owners in terms of keeping the legality in place. So today in this podcast, we will try to understand that how all these small things and how we should keep and carry the agreements in place and what kind of agreement should be there for the co-founders and founders and information of the business. I hope this podcast will give you a lot of insights regarding keeping the legal things intact for your company, for your startup, or being an entrepreneur to give a peace of mind. So please watch this podcast till the end so that you can have a lot of ideas that how you should take care about the legal things for your company intact. And before that, I would like to request you to subscribe this channel so that you can have all the updates from our end, which will be also beneficial for your development and personal growth. So please watch the podcast till the end. So first off, thank you very much for giving us your time and welcome to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Before we deep dive into the podcast, I have two disclaimers. First of all, my name is Indranil, and in this entire podcast, if I'll be asking anything and if you don't want to address or answer, you can directly say no. There is nothing like you need to avoid. कोई घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है because we are completely uncensored, unfiltered and unscripted.
And being a Bengali, if I will say anything in Hindi, you can laugh at me. I don't mind, and I am quite a bit habitual on that. So now, first thing first, आप लीगल चीज़ों में बहुत सारे डील करते होंगे और बहुत सारे कॉरपोरेट्स या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को हम मिलते हैं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि दे आर नॉट वेरी मच known about the legality, about the company formation, and what kind of certification they need, and what kind of legality they should be maintained. So उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं, so it will be better for their understanding. Thank you so much first of all for having me. मतलब this is my first technically podcast because हम lawyers, you know, webinars, seminars या trainings करते हैं. So thank you for having me. Start ही हम इस चीज़ से कर रहे हैं कि when we are starting this, same things happens with the businesses. First चीज़ ये होना चाहिए क्या structure हमें रखना है. LLP कहे, partnership करे, company incorporation, मतलब business का structure हमें क्या रखना है. First चीज़ comes first. मतलब Forbes भी है, उन्होंने भी ये priority list में top 1 पे रखा है कि you have to plan your business structure, है ना, अकॉर्डिंगली. सेकेंड ये रहता है कि क्या क्या हमें कंप्लायंसेस कर रहे हैं. MCA के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, उन्हें डबल चेक करना है, उन्हें फोकस करना है कि दिस शुड बी इन एंटायर आवर जर्नी, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग हमें ये फोकस करना है कि हम क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रखने हैं. बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स. सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास को फाउंडर है, वी शुड हैव अ को फाउंडर अग्रीमेंट. थर्ड थिंग, वी नीड टू हैव अ बिजनेस पार्टनरशिप्स अग्रीमेंट. विथ वेंडर वी नीड टू हैव अ वेंडर अग्रीमेंट. विथ क्लाइंट, अगर हम जैसे IT कंपनी है तो यू नीड टू हैव अ MSA जिसे हम मास्टर सर्विस अग्रीमेंट कहते हैं, या SLA जिसे कहते हैं. इफ़ यू हैव वेबसाइट एंड ऐप, यू नीड टू हैव वेबसाइट टर्म्स ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी. सेम गोज विद द ऐप, यू नो. ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए. मतलब जो भी आप डील कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी से, यू नो, वो वहाँ पर इन प्लेस अग्रीमेंट रखने हैं हमें. Now I am coming again back. Okay. First of all, when anybody is thinking about formation Yes. of anything, Yes. first of all, if they are alone or single, उनको ये सलाह दिया जाता है कि इट्स अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. Correct. सो जहाँ पे एक इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप में काम करे, Done. कोई झंझट में जाना नहीं चाहते हैं. Done. सेकेंडली, देयर कम्स एज ए पार्टनरशिप. Correct. वहाँ पे ये चीज़ आ जाता है पहली बार कि देयर शुड बी एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. Correct. नाउ इन टुडेज टाइम पार्टनरशिप मीन्स इट बिकम ए को फाउंडरशिप. Correct. So do you mean to say that there should be two separate agreements? One is as Yes. co-founder and one is as partnership. And Yes. what is that? सो बेसिकली को फाउंडर अग्रीमेंट में हम ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें, पीपल से अरे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड, वाई वी नीड टू हैव. पार्टनरशिप अग्रीमेंट टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप रिलेशनशिप विद द पार्टनरशिप फर्म. Okay. फर्म का मेनली होता है. को फाउंडर्स इज मोरली अबाउट द बिटवीन द फाउंडर्स, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब बहुत क्लियरली अनाइन होगा, यू विल टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग, आई विल टेक केयर ऑफ द ऑपरेशंस, Okay. यू टेक केयर ऑफ द So लीगल majorly the role division. यस. वेस्टिंग पीरियड, शेयर होल्डिंग पीरियड, है ना, ये जो बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती है, शेयर्स कैसे होल्ड करेंगे, डिस्प्यूट आएगा तो कैसे रिजॉल्व करेंगे. Okay. बहुत छोटी चीज़ें हैं बट बहुत क्रूशियल हो जाती है. मतलब हम वो बोलते हैं कि अगर को फाउंडर अग्रीमेंट है, बोलते हैं डिस्प्यूट के टाइम काम आएगा. हम बोलते हैं कि आपको डे 1 पे भी काम आएगा क्योंकि क्लैरिटी ला रहा है वो बिजनेस में. बिकॉज यू नो सब कुछ करना है. को फाउंडर सोचता है मैं ये कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर रहा है. इट ब्रिंग पीपल ऑन द सेम पेज बेसिकली. तो इट्स मोर अबाउट यू नो बिजनेस रिलेशनशिप इन द पार्टनरशिप एंड मोर अबाउट द फाउंडर्स रिलेशनशिप इन द को फाउंडर अग्रीमेंट. Now the second part is Yeah. there is a partnership agreement Yeah. and there is an LLP, limited liability partnership. Yeah. What is the difference between these two? बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फर्म में हम CACS इन चीज़ों का देखते हैं. डिफरेंस ये होता है कि आपकी लाइबिलिटीज जो हो जाती है, जैसे अगर पार्टनरशिप है एंड इफ देर इज अ लॉस, इट यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट ऑल्सो. लिमिटेड लाइबिलिटी LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब योर लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म. Okay. या एंड ये सारी चीज़ें कंप्लाइंसेस की होती है जो CACS एक लॉयर से बेहतर जानते हैं और वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं. So now if I go to the basics, then partnership don't require any CACS. CACS का मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये जो एडवाइजरी होती है, जो हम बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, परफेक्ट पर्सन जिन्हें आपको एडवाइजरी लेनी चाहिए वो होते हैं CACS, क्योंकि वो स्ट्रक्चरिंग,
क्या रखना है, क्या टैक्सेशन रहेगा. अच्छा, फॉर दैट सजेशन, For that किस टाइप particular की suggestion. फॉर्मेशन आपको करना चाहिए Correct. आपकी जो कंपनी में जिस टाइप का काम आप करना Correct, चाहते हैं correct. उसके लिए. Being a corporate lawyer, I can advise, but the true person who should be the answering this question are the CA and CS. Now, what is the right time for any limited liability partnership or a partnership to shift to Yeah. a private limited? Basically, mainly the biggest reason is if you are looking for the investment. Okay. मेन फोकस सबका यही रहता है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट ना, दे लव या दे विल टू फंड इन द कंपनीज विच आर प्राइवेट लिमिटेड, यू नो, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स. यू नो, कंपनी एक पूरी सेपरेट एंटिटी लीगली मानी जाती है. तो फोकस वहाँ रहता है मेनली कि दिस इज द राइट टाइम यू शुड कन्वर्ट इट टू द प्राइवेट लिमिटेड. Okay. So if any entrepreneurs or any startup who want to be funded in future, they should Yeah. be shifting themselves to the private limited Yeah. once they are into that level. And there are multiple many reasons जिसके कारण हमें LLP से प्रिफर्ड होता है कंपनी में जाना. और यही मैं बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एक प्रॉपर CACS ज़्यादा सही तरीके से आंसर्स करते हैं. एक लेमैन की तरह अगर बात करें, हाँ, जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको सबसे पहले ये जो आप CACS की बात करते हैं, करेक्ट. यही लोग सबसे पहले सलाह देते हैं Correct. कि बी इनटू पार्टनर और बी इनटू पार्टनरशिप और बी इनटू प्रोप्राइटरशिप, करेक्ट. क्योंकि लीगलिटी का झंझट कम है, एक्सपेंसेस कम है. करेक्ट. जब आप प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं तब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है. टैक्सेशन चीज़ हाँ, तो व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ सजेशन? तो वही बोल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या विजन है, क्या गोल है, उन पे ये डिसीजन डिपेंड करते हैं. एक प्रॉपर रिसर्च आंसर जब निकलता है देन इट इज़ फ्रूटफुल. बस ऐसा है कि हो क्या रहा है, इट्स वेव, सब प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, लेट्स गो फॉर द प्राइवेट लिमिटेड. दिस शुड नॉट बी डन. यू शुड प्रॉपरली सिट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन कि क्या ये, दिस इज माई विजन एंड दिस आई वॉन्ट टू डू इन द नेक्स्ट 10 years 5 years, देन द CACS विल बी इन द राइट पोजिशन टू गाइड यू कि दिस शुड बी देयर. अभी एक बार एकदम पुराने जमाने में चले जाते हैं. ठीक है. आप बेसिकली कहाँ से हैं और कहाँ से आपको ये इंटरेस्ट लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए एंड यू एंटर इनटू दिस वे? बिकॉज LLB इटसेल्फ इज अ टफ थिंग. LLB के बहुत सारे पार्टीशंस हैं, बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, एंड देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन डिफरेंट सेगमेंट. एंड व्हाई दिस कॉर्पोरेट सेगमेंट यू हैव चोजन एंड व्हाट आर योर बेस, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, आपकी स्कूलिंग कैसे रही और बेसिकली आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दें. दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएगी. स्कूलिंग का अगर हम देखते हैं, बेसिकली फ्रॉम रतलाम. ओके. तो आई हैव डन माई इंटायर स्कूलिंग, माई इवन द लॉ बेसिकली जिसे हम LLB कहते हैं, वो सब मैंने रतलाम से ही किया है. डिड मास्टर्स फ्रॉम इंदौर. तो स्कूलिंग से ही ना हमेशा से मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में रहा है. एंड आई वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, मतलब हमेशा टॉप 3 टॉप 5 वाला रहता है, न्यूज़पेपर्स में आना और वो सारी चीज़ें बहुत रही है. बट माई ग्रैंड फादर इज़ 90 year old एंड आज भी वो रेगुलरली कोर्ट जाते हैं. Wow. एंड ही प्रैक्टिसेस प्रॉपरली, ही गोज टू ऑफिस एंड क्लाइंट मीटिंग एंड सब करते हैं वो. तो लॉ का एक माहौल घर में था एंड मोस्ट ऑफ द माई रिलेटिव्स यू विल टॉक अबाउट दे आर इनटू लॉ. तो when Dadaji was used to be there, I used to read his books and I was like much into law. But schooling के बाद when you are a bright child ना, आपको बोलते हैं अरे you should do engineering, you should do MBA and you should do a CA. तो सबका ये था यार she is very good, तो CA पे ही फोकस करो. Even I gave my entrance और उसमें भी हुआ ये कि मैंने टॉप कर लिया सिटी में. तो बट यू नो जब मैं वो पढ़ रही थी ना अकाउंट्स एंड ऑल, तब भी मुझे लॉ ही था जो बहुत इंटरेस्ट कर रहा था. देन सबकी सुनने के बाद किया, बट वन डे आई वॉज लाइक कि नहीं, अब मैं आई एम 100% श्योर कि मुझे लॉ करना है. सो दिस इज़ द स्कूलिंग पार्ट. अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ कॉलेज में जब हमने एंटर किया, कुछ सेशंस हुए, सेमेस्टर कहें जैसे हुए, उसके बाद प्रिंसिपल मैम को किसी ने बोल दिया कि शी इज़ डूइंग टॉप इन द सेमेस्टर लास्ट ईयर में. वो पता चल जाता है यू नो, ओके यार शी इज़ डूइंग टॉप, तो आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो. एंड दिस लेड मी टू द गोल्ड मेडलिस्ट. टीचर्स, प्रिंसिपल्स सब मिलकर, सबका एक फोकस था कि यार लेट्स डू दिस, यू नो, एक कॉलेज के लिए प्राइड वाली चीज़ हो जाती है. तो दिस हैपेंड विथ माई गोल्ड मेडल. और जब ये सब हो रहा था तो कल्चर ये था कि जब हम एग्ज़ाम देते थे, पढ़ते थे, द डे एग्ज़ाम ख़त्म, नेक्स्ट डे हम लोग मूड कोर्ट्स करते थे. अगर आपने सुना हो मूड कोर्ट, बेसिकली
आर्टिफिशियल कोड डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ पे सेम आर्ग्यूमेंट्स और सब कुछ होता है. प्रॉपर जजेस होते हैं, जो एक्स जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं सीनियर, वो जज बनते हैं एंड दे डू यू श्रुतु. तो हम नेक्स्ट डे ही वो सारी चीज़ें करते थे, वेबिनार्स करते थे, पेपर्स इंटरनेशनल पब्लिश करते थे, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते थे साथ में. तो वहाँ से आई वॉज 100% श्योर कि चूज़ तो सही स्ट्रीम किया है. एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया, हाई कोर्ट में किया. वन फाइन डे इट इज़ मैंडेटरी टू डू इंटर्नशिप इन द लोकल कोर्ट्स. ओके. दादाजी थे बट होता है कि यार इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसा रहता है कि नहीं, यू डू इंटर्नशिप विद समवन एल्स. तो मेरे जो मेंटोर थे, जो टीचर थे, उनके साथ मैंने फर्स्ट डे किया. आई वेंट ओवर देयर एंड जब मैंने वो किया, आई वॉज कोइंसिडेंटली मेरा फैमिली कोर्ट में ही फर्स्ट डे हो गया. ओके. एंड जहाँ मैं वहाँ गई, husband is shouting, wife is shouting, the lawyers are fighting, judge is shouting. That day I came out and I told you I'll do anything but not this. मतलब मैं बहुत क्लियर हो गई उस दिन इंटर्नशिप के दिन कि यार प्रैक्टिस जो होती, कोड प्रैक्टिस, आई एम नॉट मेंट फॉर पर्टिकुलर दिस थिंग. और यहाँ से हुआ कि आई हैव टू गो इनटू द कॉर्पोरेट्स. बट इन लॉ मेजरली आर्गुमेंट करने का ही पैसा मिलता है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ए लॉयर. यही माइंडसेट बहुत का है, बट अब बिल्कुल शिफ्ट हो गया है. इफ़ यू विल टॉक टू नाउ अ डे स्टूडेंट्स ना, जो हमारे इंटर्न्स भी होते हैं या जो बहुत सारे काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, सबको कॉर्पोरेट लॉयर बनता है. बिकॉज द शिफ्ट इन द सैलरी, द शिफ्ट इन द फीस हैज़ बिकम so great. You get a lot of huge amount in this corporates. While in terms of normal lawyers, it's a gestation period, a long gestation period. Correct. कि आपको बहुत सारे समय प्रैक्टिस करना पड़ता है किसी का अंडर में. Then only you can be individual. Correct. And then you will start earning what you have hoped for. So Correct. that was maybe the another reason. Yeah, 100%. पर corporates में भी उतना ही ज़्यादा struggle है. Okay. मतलब So what is the difference between a normal lawyer and the corporate lawyer? Basically, we don't go to courts. We work That's with the fine. corporates and we advise them. पहली चीज़ होती है लीगल एडवाइजरी. छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यही जैसे स्टार्टअप्स को कैसे रन करना है, क्या कंप्लाइंसेस करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स करना है, क्या ट्रेडमार्क कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें. दूसरा हो जाता है कोर्ट प्रैक्टिस में लिटिगेशंस पे फोकस ज़्यादा रहता है. हमारा रहता है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. हम लोग क्लाइंट्स को बोलते हैं लेट्स, समटाइम्स ना डिस्प्यूट क्या होता है, ईगो है ना. तो वी सिट विद क्लाइंट, वी टेल देम लेट्स कम टू अ टेबल, वी नेगोशिएट एंड वी सॉल्व द डिस्प्यूट्स. ये चीज़ें कॉर्पोरेट लॉयर करते हैं. बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया है कोर्ट का जो प्रोसेस है. इतने टाइम में जब हमें जस्टिस मिलेगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. So now my point is कि हिंदुस्तान में कोर्ट एक आखिरी मुकाम है कि कुछ नहीं हो तो हम कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऐसा एक कहावत चले आ रहा है. And it is now in the corporate as well. Correct. That in legal litigation, once it has entered into the legal litigation, then God only knows when it will be over. Correct. Right? So majorly the legal advisors, they are always suggesting कि आप out of court settlement कर लीजिए. Perfect. And what are those out of court settlement? Number one, because see, when you are forming a company, आप सब कुछ फोर्स ही नहीं कर सकते हैं कि आप किस टाइप की लिटिगेशन में फंस सकते हैं. Correct. और हर चीज़ के लिए एग्रीमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिजिबल, बिकॉज गुड फेथ में ही काम करना पड़ता है. एंड आज भी यही कहा जाता है कि पेपर तो पेपर है, उसकी वैल्यू तो तब है जब कोई लिटिगेशन होगा, अदरवाइज तो ज़बान की कीमत है और इंडिविजुअलिटी में ही दुनिया चल रही है. हाउ यू जस्टिफाई दिस? सो फर्स्ट क्वेश्चन से की जगह मैं सेकंड से आंसर करती हूँ तो अपने आप फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. ओके. Law is very clear in the Indian Contract Act 1872. It is clearly mentioned. If you handshake, it is a contract. There is no need to have things on paper. Right. But it's difficult to prove. That's why oral के साथ भी यही problem है. That's why it's good to have things in writing. Don't have agreement. At least have points in the mail. Right? In writing, it bring more clarity to you. वो भी नहीं होता है. Agreement करो to bring people on the same page. नोटराइज करो, स्टैंपिंग करवाओ टू कि कल से ये रहे कि फ्री कंसेंट में चीज़ें हुई है. नाउ अगेन आई एम जस्ट स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल. देयर आर लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स जहाँ पे लीज एग्रीमेंट होता है, बहुत वैल्यू की लीज एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे लोग इसको रजिस्टर कराने से भी चूकते हैं बिकॉज देयर इज ए कोर्ट फीस. करेक्ट. उस कोर्ट फीस को बचाने के लिए बहुत सारे लोग इसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं. एग्रीमेंट तो करवा लेते हैं बट उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करते हैं.
So now my point is, what is the difference of a registered agreement or a normal agreement? सी हम यही कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन और नोटराइजेशन ये भी दो अलग चीज़ है Yes, है ना? yes, yes. तो रजिस्ट्रेशन होता है जो हम बेसिकली कलेक्टोरेट में करवाते हैं, आप समझते हैं, और नोटराइजेशन स्टैम्पिंग एक नोटरी पर्सन के सामने हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं उस पर्टिकुलर की और हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, है ना? Fine. इंपॉर्टेंट ये होता है, कुछ अग्रीमेंट्स हैं जैसे इट्स रिलेटेड टू लीज, है ना, या रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्ट में, सीपीसी में बहुत क्लियरली लिखा है कि ये अग्रीमेंट्स जो हैं इन्हें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें जैसे एमएसए है, इनमें कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना है, ठीक है, तो उन्हें वैसे करिए। सी क्या होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक चीज़ हो जाती है, Yes, true. तो डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट ना आप उन चीज़ों को वैसे करो तो कॉस्ट सेव होगा, और प्रूफ तो ऑब्वियसली मैं जब बोल रही हूँ हैंडशेक भी अलाउड है तो वो भी अलाउड है। डिस्प्यूट क्या आता है कि दूसरी पार्टी बोलती है अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने साइन नहीं किया, Yes. उसको रिजॉल्व करने के लिए नोटराइजेशन एंड स्टैंपिंग और किसी चीज़ में मैंडेटरी बस वहाँ करना है, अदरवाइज एटलीस्ट हैव अग्रीमेंट। और आप बोल रहे हो कि अग्रीमेंट एक पेपर है, पर्सपेक्टिव हैज टोटली चेंज्ड, ये चीज़ बहुत बदल चुकी है, क्योंकि हम अब फोकस कर रहे हैं। आप मुझे बोलोगे गजल मुझे कल अग्रीमेंट चाहिए, आई विल से नो वी कांट ड्राफ्ट। हम फोकस कर रहे हैं उस अग्रीमेंट को कस्टमाइज्ड बनाने के लिए। कोई एक फिक्स फॉर्मेट मेरे पास नहीं मिलेगा, मुझे बस ये पता है कि लीज डीड में ये 10 पॉइंट्स होने चाहिए एंड आपकी केस के हिसाब से वील ड्राफ्ट दैट। तो जब उसको कस्टमाइज करते हैं ना तो वो पेपर नहीं बचता है, क्योंकि उसे डे टू डे उस लीज डीड में ना बहुत छोटी सी बात है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का एक्सपेंस को बियर करेगा, ये भी लिखा है, और नहीं बियर करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं। तो वो डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत हेल्प करने लगी एंड उनका डिस्प्यूट ऐसे ही रिजॉल्व हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था कि कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करो, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कांट रिजॉल्व योर सेल्फ, हैव अ लॉयर, दोनों पार्टीज़ के लॉयर या एक लॉयर से भी हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। आजकल बहुत सारे मीडिएटर्स होने लगे, मीडिएटर्स का काम ही ये होता है पार्टीज़ को मीडिएट करवाना, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। Court itself also has a mediator center. यस, मीडिएशन आर्बिट्रेशन कोर्ट का भी होता है। Okay. और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आर्बिट्रेशन की चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। Now, what is the difference of an arbitration, keeping in that agreement as a terminology कि we should go for an arbitration? Because normally ये कहा जाता है कि arbitration means कि आप डायरेक्टली कोर्ट पे नहीं जा सकते हो, पहले आपको मीडिएशन में आना है एंड देन ओनली अगर सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन गो टू द कोर्ट। Otherwise, people will directly go to the court and then there will be legal litigation will started. So, what is the actuality of it? ठीक है, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन ये दोनों टर्म भी बहुत डिफरेंस है। Okay. मीडिएशन एक बेसिक होता है जिसमें कोई सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट ने नहीं बना रखे कि ऐसे ही करना है, वो एक फॉर्मल वे में आप चीज़ों को विन विन सिचुएशन क्रिएट करके रिजॉल्व करो। जैसे थर्ड अंपायर होता है वैसे ही कोई एक थर्ड पार्टी Correct. बैठेंगे एंड दे विल ट्राई टू रिजॉल्व। करेक्ट, मीडिएटर जो पर्सन होगा वो मीडिएट करेगा, ही कैन बी एनीवन, नॉट अ लॉयर, ओके, है ना। एक मीडिएटर होगा जो एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है उस सब्जेक्ट मैटर का, राइट, ही कैन ऑल्सो। आर्बिट्रेशन है वो गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एक्ट से, ओके, पूरा प्रॉपर प्रोसेस लिखा है क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी बोथ आर हैविंग एनी डिस्प्यूट, राइट, यू विल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, आई विल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, दैट टू आर्बिट्रेटर विल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर, दिस थ्री पीपल विल गिव अस द जजमेंट एंड दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन अस। ओके। सो इवन वन आर्बिट्रेटर वी इफ यू, क्या होता है बेसिकली हम दोनों का जब डिस्प्यूट होता है ना, वी आर नॉट रेडी फॉर वन पर्सन, तो ये प्रोसेस भी है। तो ये सारी प्रोसेस ना आर्बिट्रेशन एक्ट में बहुत क्लियरली लिखी गई है। लोग आर्बिट्रेशन की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो चुके हैं, बस इट्स बिट एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू लिटिगेशन जो कोर्ट में होता है। सिंपल। ओके, सो क्या आर्बिट्रेशन रखना चाहिए किसी टर्म्स एंड कंडीशन में कि बेटर टू नॉट टू कीप इट? व्हाट इज योर सजेशन? सी डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, लॉयर्स का आप बोलोगे ज्यादातर आंसर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है तो 100% आर्बिट्रेशन रखो, बिकॉज कोई उस चीज़ को ना, आर्बिट्रेटर होता है ना, तो वो इंटरनेशनली एग्जीक्यूशन में भी काफ़ी हेल्प करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल जहाँ हमें लग रहा है बहुत छोटा सा मैटर है, क्योंकि आर्बिट्रेशन की फीस भी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व हेल्प अस इन डिसाइडिंग द आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेशन स्पीडी ट्रायल होता है, एक टाइमलाइन है कि विद इन 3 months द आर्बिट्रेटर हैज़ टू गिव जजमेंट, अदरवाइज पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम ऑल्सो। तो इसलिए स्पीडी होता है, क्विक होता है, प्रैक्टिकल होता है, दैट्स वाई यू शुड ऑप्ट फॉर द आर्बिट्रेशन। और आपको लग रहा है कि वेरी स्मॉल अमाउंट इज इन्वॉल्व, राइट, देन यू कैन गो फॉर द लिटिगेशन। सिंपल। एंड आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर होते हैं
उनका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए? यस, एक्स जज है ना, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, या कोई सीनियर क्वालिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर्स होते हैं, वो भी चलते हैं, बट मेनली कोर्ट भी अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर को. नाउ सी, यू एंड मी इज हैविंग सर्टेन लिटिगेशन ठीक है. and we have an arbitration clause. Now I want to raise that arbitration and I want to initiate that. Okay. So first of all, I will appoint one arbitrator, right, of my choice. ये हम अग्रीमेंट में लिखते हैं Okay. कि आर्बिट्रेशन कैसे वर्क करेगा. वी बोथ आर, यू नो, वी हैव अ डिस्प्यूट, बट वी आर ओके टू अपॉइंट सिंगल आर्बिट्रेटर. Okay. है ना. या डे वन पे वी हैव डिसाइडेड दैट दिस एक्स पर्सन विल बी आवर आर्बिट्रेटर, who is not having a, you know, conflict of interest with both the parties. Okay. Otherwise, we mention that one you will appoint, one I will appoint, and that two will decide, or that two will appoint third person. तो ये सारी चीज़ें मैं वही बोल रही हूँ कि हम agreements को customize बनाते हैं कि हमें क्या रखना है. Every single line has to be read harmoniously with the entire agreement to bring, you know, to make the disputes as less as we can. Simple. You are a gold medalist. Yeah. So now I will try to take advantage of it. Uh, 3 एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल, इट्स अ सेक्टर ऑफ IT, related to IT sector, whatever it is application development, website related things, software development, it can be anything. Second is a manufacturing kind of a startup, and third is a service industry. So पहले हम आ जाते हैं IT वाले में. So for a basic IT startups, yeah. what will be your suggestion to keep these certifications and agreements? Okay. So mostly we are providing services to IT companies only. Fine. Mostly we are working for them. For example, अभी हम TCS में कर रहे हैं, but I am mostly the external member over there. Okay. जो पॉश की हमने बात हम आगे करेंगे ज़रूर. तो पॉश के लिए आई एम द एक्सटर्नल मेंबर देयर. बट यू नो, कहीं ना कहीं लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं IT कंपनीज के लिए. सबसे पहला स्ट्रक्चरिंग की बात हमने कर ही ली है. Yes. दूसरा डॉक्यूमेंटेशन. No. वही को-फाउंडर अग्रीमेंट. वही अगर आपका वेंडर है, वेंडर्स क्या होते हैं, सर्विस. अगर आप IT कंपनी के वेंडर्स कौन हो सकते हैं, दे आर टेकिंग एनी कम्युनिकेशन सर्विस फ्रॉम एनी कंपनी, है ना, या दे आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग थिंग्स. तो वेंडर अग्रीमेंट या आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट, बट इट कैन बी मल्टीपल. या तो डिपेंडिंग अप, बेसिकली ना हमने 2 चीज़ें की है. यू आर अ स्मॉल स्टार्टअप, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मच, तो वील ड्राफ्ट अ मास्टर अग्रीमेंट जिसमें हम कवर करेंगे कि हमें पता है डे 1 पे कि आपके 5 टाइप्स के वेंडर होंगे, तो हम उनके लिए 5 वेंडर्स अग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे. एंड आप अभी नहीं कर सकते हो तो आई विल ट्रेन योर सेल्स पर्सन और द वेंडर पर्सन जो आपको गाइड करेंगे कि आई विल टीच देम. हमारी टीम उन्हें बताएगी कि ये वेंडर अग्रीमेंट है, इसमें बस ये चेंज करो एंड योर कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी रेडी. तो वेंडर अग्रीमेंट हो गया, आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट हो गया, सेम हो जाता है. नेक्स्ट इज बहुत क्रूशियल होता है क्लाइंट अग्रीमेंट, जिसे हम MSA बोलते हैं, मास्टर सर्विस अग्रीमेंट, जिसमें हम क्या क्या सर्विसेज क्लाइंट को देने वाले हैं हम उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं टू ब्रिंग क्लाइंट एंड अस ऑन द सेम पेज. के अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट करें, कोई IT कंपनी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो किस किस स्टेजेस पे कितना करके देगी, क्या उनका पेमेंट कितने टाइम में आएगा, किस प्रपोर्शनेट में मिलेगा, कौन डेवलपर रहेगा, डेवलपर्स के साथ हम NDAs करते हैं और IP अग्रीमेंट्स करते हैं कि यू आर नॉट हैविंग द राइट, ऐसी चीज़ें. तो MSA, फिर SLA होता है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट. किस लेवल की सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, हम वो अग्रीमेंट करते हैं. वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये क्या होता है यूजुअली अभी भी हम सुनते हैं, तो वी डोंट नीड दैट. गजल हमने हमारे कॉम्पिटिटर से कॉपी कर ली है. व्हाट इफ दैट कॉम्पिटिटर इज प्रोवाइडिंग द रिफंड एंड यू आर नॉट डूइंग द सेम, है ना. तो उसका भी कस्टमाइजेशन होता है. मतलब लाइक इट टेक्स मंथ फॉर अस टू ड्राफ्ट अ टर्म्स एंड कंडीशन. अगर हम प्रॉपर लेवल पे जाएं, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाएं, GDPR कंप्लाइंट करके, PP एक्ट मतलब DPDP एक्ट जो अभी रिसेंटली आया है डेटा प्रोटेक्शन का, वो इम्प्लीमेंट करते. तो ये बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कवर करके, ये होता है अग्रीमेंट्स का पोर्शन. और मैं क्या बोल रही हूँ, हंड्रेड्स ऑफ अग्रीमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन, है ना. बिजनेस पार्टनरशिप्स करते हैं हम, चैनल पार्टनर्स बनाते हैं IT में भी, तो वो सारे अग्रीमेंट्स होते हैं. उसके बाद एक बहुत क्रूशियल चीज़ आ जाती है जो बिजनेसेस बहुत मिस कर रहे हैं, वो है ट्रेडमार्क्स. यू नो, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं टू बिल्ड अ ब्रांड एंड वी आर नॉट डूइंग अ ट्रेडमार्क ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ट्रेडमार्क करवाने का, यू क्रिएट अ ब्रांड
जब तक आप उस पे यू फील प्राउड एंड योर क्लाइंट ट्रस्ट यू मोर व्हेन देयर इज आर ओवर देयर, है ना। तो ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत तरह तरह के ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे कि एक साउंड भी है दैट कैन ऑल्सो बी ट्रेडमार्क, द स्मेल कैन बी ट्रेडमार्क, द नेम द लोगो दैट नीड्स टू बी ट्रेडमार्क। बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बहुत क्रूशियल हो जाता है, जो बिजनेसेस बहुत मिस कर रहे हैं। वो सोचते हैं, जब हम पे वन ऑफ आवर क्लाइंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे थे उन्होंने ट्रेडमार्क ही नहीं करा, एंड द सेम ट्रेडमार्क किसी और ने ले रखा था, गूगल ने उनका ऐप डिसोन कर दिया। They were not allowed to run their app on the Google until and unless that particular registration was done, and they were given the notice of copyright infringement and the trademark infringement. So they do it on the day one, ताकि आपको ये सारी चीज़ें, बिकॉज ट्रेडमार्क होने में इट टेक्स टाइम, ईयर्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं। तो व्हेन यू आर बिग ब्रांड ना, उससे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आईटी कंपनीज को बोलते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग ना, बी इन्वेस्टर रेडी। हम कब हमारी कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करते हैं? जब इन्वेस्टर आता है, उनके लॉयर्स आते हैं, वो हमें चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं नहीं। बी इन्वेस्टर रेडी फ्रॉम द डे वन। फंडिंग के पहले खुद को प्रिपेयर करो कि ये चीज़ें वो आकर चेक करें, सी वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, एमएसएमई का सर्टिफिकेट लो, DPIIT का सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं ना, उद्यम, बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं पर वो बहुत क्रूशियल हो जाते हैं और उनके इतने बेनिफिट्स हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलते हैं। ओके, सो ना अगर जिस्ट करें थोड़ा सा, हाँ, तो एक आईटी फर्म के लिए आप 1 2 3 4 5 हमें बता दें कि व्हिच आर द मेजर थिंग्स दैट यूज बिजनेस स्ट्रक्चर, सारे अग्रीमेंट्स इन प्लेस, ट्रेडमार्क्स और बेसिक छोटे छोटे कंप्लायंसेस जो एंड एग्रीमेंट शुड बी मेंशन्ड कि फंडिंग के लिए आप कितना तैयार हैं पहले से ही। That will be done in the agreement or that should be a separate thing? We are saying fifth thing is due diligence. Okay. वो सबके लिए है कि आप अपने आप को रेडी रखो कि डोंट वेट फॉर इन्वेस्टर टू कम एंड चेक यू। जब वो आते हैं ना, वो सब चेक करते हैं, बी रेडी फॉर दैट। ड्यू डिलिजेंस अपना कर रखो कि यार दिस थिंग्स आर इन प्लेस। सिंपल। Okay, fine. Now comes to the manufacturing segment. I think I have summed up for all the sectors basically. चेंज होगा तो अग्रीमेंट कि अब मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो वहाँ पे हम अगर बहुत सारा रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो वेंडर से, जब हम मार्केटिंग एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर से करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, है ना, बस ये चेंज होंगे। बट जो जिस्ट है कि ये 5 चीज़ें हमें कंप्लायंसेस करने हैं, वो हर जगह करने हैं। मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे कंप्लायंसेस आ जाएंगे। फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यू हैव टू लुक इनटू द फसाई थिंग्स। बाकी ब्रॉडली आई हैव कवर्ड के क्या चीज़ें बेसिक, कोई भी स्टार्टअप है उसको ये चीज़ें 5 थिंग्स यू हैव टू डू। Now I have a separate question that is under service sector. Service sector में there is a major portion which come around in today's time, that is fintech or financial services. Okay. When it comes to the financial services and people's money is involved, the entire algorithm gets changed. So now what should be the things that when you are into the fintech or you are into the financial services, what are the things as a company to keep for their own benefits, and what are those things they should also carry for the customer's benefit, what they can project in a broader manner ki we are this kind of company who takes care about the customers as well. Otherwise in the market there are a lot of things which are happening that financial services and these kind of companies, they are just getting money from the customers and then there is no liability. Yeah. So how to safeguard that and how a company can prove their credibility in that manner कि we are also taking care about the customers as well. Yeah. So ये 5 broader compliance that is done, right? Yes. Then comes RBI की guidelines. Right. And we have, see, basically lawyers भी होते हैं, एक ocean है ना, civil lawyer, criminal lawyer, corporate lawyer, and corporate lawyer in the different categories. I am more into IT. I am not into gaming. तो जो स्पेशलाइज पर्सन है ना, यू रीच आउट टू दैट, क्योंकि वो आपको चेकलिस्ट देगा कि यार ये RBI की XYZ 10 कंप्लायंसेस है, यू फॉलो दैट। जैसे गूगल की पॉलिसीज़ हैं कि ये चीज़ें आपको आपकी वेबसाइट या आप कहें आपके ऐप पर ये मेंशन करनी है, अदरवाइज वी वोंट अलाउ यू। तो वो सारी चेकलिस्ट आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है, इट्स मोर अबाउट रीच आउट टू दैट सुपर स्पेशलिटी हो गया ये। परफेक्ट। तो आपकी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लॉयर के पास आपको जाना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए बेसिकली। Now let's come about the financials of a company.
कि जो डिस्क्लोज करना होता है कि किस टाइप की फंडिंग आपके पास आए हैं या किस टाइप की आपका जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं या पीएल एंड बैलेंस शीट की बात करते हैं हम, जब तक हम प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, तब तक बहुत ज़्यादा इसको देखा नहीं जाता है. वंस यू कम्स इन टू द प्राइवेट लिमिटेड, देन देयर इज अ क्वार्टर बैलेंस शीट एंड क्वार्टर थिंग्स दैट यू नीड टू पोस्ट एंड अदर थिंग्स. हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल कंपनी, एवरी सिंगल स्टार्टअप to manage and maintain their PLI, because in today's time people are talking much, people are talking about valuation and everything, but how the PLI works, that is actually the health of the company. Valuation आप पेपर में कितना भी दिखा दें या कुछ भी करें, it is always hypothetical. True. So how much P&L for all segment of the companies, like starting from proprietorship to the private limited, how much it is important, and how any company or startup should maintain that for their own self to understand where they stand actually. True. To bring you the clear picture. Yes. है ना? तो basically we say start it from the day one. है ना? जब हम सोचते हैं कि जब when we'll convert into private limited ना, we'll do that kind of thing. Yes, yes, true. Don't do that. Do it from the proprietorship, because you'll have a database. Yes. You'll have things to analyze and compare कि where we actually stand. Nowadays, have a good CA, good CS. Don't avoid having them. बिकॉज CA है, हम उनसे ही कॉर्पोरेट लॉयर वाला अग्रीमेंट बनवा लेंगे, नहीं होगा काम. या कॉर्पोरेट लॉयर है हमारे पास, CA नहीं है, नहीं काम होगा. थोड़ा भी ग्रो कर रहे हो, थोड़ा विजन रखते हो, हैव CA, CS, लॉयर. एंड CA नहीं रख रहे हो तो फॉर गुड एडवाइजरी, जैसे हम बात करें फिनटेक में भी एडवाइस, हैव अ CFO. CFO इज लाइक काइंड ऑफ और CFO या एक वर्चुअल CA रखो जो आपको इनको मेंटेन करने में ना एडवाइजरीज दे. तो इनके सब्जेक्ट मैटर्स के जो एक्सपर्ट है उनके साथ बैठ करके एडवाइजरी लो और उनको उस वे में कंप्लाइंट करो. यहाँ पे एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर ए कंपनी. सो जब एक स्टार्टअप खुद ही स्ट्रगल कर रहा है या खुद ही जब वो सब हाथ पैर मार रहा है टू गेट समथिंग, टू गेट ए कॉन्क्रीट लेवल, यहाँ पे ये छोटी छोटी उसको खर्चा नज़र आता है. इसको इन्वेस्टमेंट या इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो तब ये समझता नहीं है या सोचना नहीं चाहता है, बिकॉज दैट टाइम स्ट्रगल इज समथिंग एल्स. सो फॉर एन एग्जाम्पल कैन यू प्लीज एलाबोरेट कि हाउ मच इट एक्चुअली कॉस्ट so that everybody should keep that kind of funding also ready so that their company's health should be maintained in a right way? It's impossible to give that particular figure because depending on the CA, है ना? Any bracket? There is no bracket over there. Reason being के इसीलिए तो लोग डरते हैं, इसीलिए तो स्टार्टअप डरते हैं, इसलिए तो नहीं कर पाते. Reach out to a CA whom you can trust. सबसे पहले ऐसे CA के पास जाओ जहाँ से आपको एडवाइजरी मिल जाए बेसिक. मतलब स्टार्ट करो एक बेसिक CA के साथ, फिर रीच आउट. बिकॉज जैसे वो खर्चा सुनते हैं ना वैसे ही वो पीछे आ जाता है. ठीक है देख लेंगे, ठीक है कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले क्वार्टर में कर लेंगे, ये आने वाला है इसमें से कर लेंगे. और वो आता भी नहीं है शायद, और आता है तो जाने के रास्ता पहले से तैयार रहता है, तो वो अमाउंट कभी बचता ही नहीं है जो ये कंसल्टेंसी के लिए जाना होता है. दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग मोर एंड मोर, सो दैट एवरीबडी शुड हैव समथिंग इन देयर माइंड कि भले ही वो 20,000 हो, भले ही वो 25,000 हो, भले ही वो 50,000 हो, बट दे शुड ऑल्सो कीप इन देयर माइंड कि वी नीड टू एक्सपेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर हैविंग ए बेटर हेल्थ ऑफ द कंपनी. नाउ द बेस्ट वे इज यू प्लान कि हमारे से हम मंथली कितना निकालते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट रीच आउट टू CA एंड टेल हिम दैट क्लियर पिक्चर. If you're talking about the CA, we say कि agreements are also very customized. Yes. CA, forget about the CA, CS. CA तो सब रखते हैं, है ना? सबका CA होता है. Even if your father is into typical business, वो भी एक CA रखते हैं. Yes. But lawyer का तो कभी कोई सोचता ही नहीं. Corporate Exactly. lawyer तो is like premium है, हम तब बात करते हैं. But things have totally changed. Reach out to a lawyer or a CA who understand this. मतलब for example, why Delhi client is coming to us? The biggest reason is we are having a cost effective services. They tell us, Ghazal, we have only 20,000 budget for this month. So I'll tell him ये पहले चीज़ें करते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट मंथ हम ये चीज़ें करेंगे. मैं यही बोल रही हूँ, रीच आउट टू देम ऑन द डे वन टू प्लान. कि यार हमें 10 अग्रीमेंट्स बनाने हैं. वी डोंट हैव फंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, बिजनेस के लिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट. तो हम अभी वो बनाते हैं. फिर हमें MSA मैंडेटरी है, प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी है. देन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, प्लान अ फंड एंड देन प्लान compliances. Not a
compliance is basically compliances तो आपको करना ही है, but then you opt for the proper legal process. Okay. Simple. Because I am asking more and more about it because startup के खुद के अलग struggles होते हैं, Correct. multiple struggles they are doing. So जो partners होते हैं या जो co-founders होते हैं, अगर उसमें से कोई इस टाइप के समझदारी रखते हैं तो फिर वही सब मेंटेन कर लेता है to safeguard that kind of cost. Correct. कि किसी और को दे तो यहाँ पे रख ले. Now accounting की जब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, so there are multiple agencies who are giving accounting services to multiple companies and taking a small chunk of amount Correct. monthly. So is there any kind of facilities available in terms of corporate lawyership or these kind of services where you can provide these kind of small chunks as well? 100%. Okay. Because we are also working on a retainership model. Mhm. कि यार गजल, we want someone to be just a phone call away. Yes. Along with the cost effectiveness, मैंने बताया कि दिल्ली के लॉयर से हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव, इंदौर में बैठकर हम वी हैव मोर क्लाइंट आउट ऑफ इंदौर बिकॉज उन्हें ना एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है. सेकेंड, उन्हें यही बेनिफिट मिलता है कि वी कैन प्लान ऑन द रिटेनरशिप, राइट. कि गजल वी हैव 10,000 एज एन मंथ, वील डू प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स. कि अगर लीगल नोटिस बनाना है तो इस मंथ हम सर्व करते हैं लीगल नोटिस, नेक्स्ट मंथ वील वर्क ऑन द अग्रीमेंट. तो दिस वी कैन डू एंड वी कैन प्लान. मतलब बेसिकली ना एक ही चीज़ है, बिजनेस आर लेकिंग ओवर द प्लानिंग. वो प्लान नहीं कर रहे, वो सोचते हैं कि जब हम थोड़े बड़े होंगे ना तब हम अग्रीमेंट बनाएंगे. इफ़ यू आर स्मॉल स्टार्टअप, go to someone who can make you, you tell them frankly कि we don't have funds. हम लोग समझते हैं जब स्टार्टअप्स आते हैं तो हम उन्हें बजट फ्रेंडली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द रिटेनरशिप मॉडल, दिस आर द इन्वेस्ट, मतलब यू कैन पे अस मंथली, क्वार्टरली, वो सर्विसेज सब है. इवन people are giving shares to the advisors or the corporate lawyer nowadays. Okay. Because they can't pay the fees. Yes. So they, in terms of shares, they pay, and along with that they pay the small fee. तो बहुत सारे options available है. It's just you are not reaching out think it to be expensive. Simple. अभी थोड़ा सा वापस से पीछे जाते हैं रतलाम में. ठीक है. रतलाम में आपके फैमिली में लॉयर थे, आपके ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर. सो व्हाट काइंड ऑफ लॉयर ही इज? अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई है कि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर और अ थर्ड जनरेशन लॉयर. राइट. बिकॉज ही इज मेनली इनटू सिविल थिंग्स और द फैमिली थिंग्स. ही इज अ Okay. सिविल लॉयर, है ना. Okay. एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉयर एंड द कॉर्पोरेट लॉयर. आई वाज ब्राइट स्टूडेंट, सब कुछ बहुत इजीली हुआ, सब कुछ अच्छा है, नो स्ट्रगल, बट आई स्ट्रगल्ड अलॉट व्हेन इट केम टू द कॉर्पोरेट लॉयर. तो उनका वर्किंग से मुझे बस ये मिला कि हाउ टू वर्क प्रोफेशनली, वो सीखने को मिला. बेसिक जो लॉ होते हैं ना, जो हमारे बेसिक लॉ कहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे उनसे आई कि हाउ यू डू. बिकॉज कॉर्पोरेट लॉयर भी हो, सिविल लॉ आपको पता होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. सिंपल. किस किस प्रकार के ये लॉयरशिप होता है? लाइक सिविल लॉयर एक होता है, क्रिमिनल लॉयर एक होता है. आप थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में कि व्हाट द फ्रेंचाइजीज आर. तो बेसिकली माय फादर इन लॉ इज अ क्रिमिनल लॉयर. ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years, है ना. क्रिमिनल लॉयर के अंडर में क्या आता है? His clients are लोग murderers, rapists, उस काइंड के clients. Rape is also comes under criminal lawyer. Yeah, definitely. Okay. Anything related to crime, Okay, fine. anything related to finance, property comes into civil law. Okay. That kind of मतलब harming somebody else physically, that comes under criminal lawyer. Correct. Right. And If harming. it's related to body, then it's Yes. come to criminal. Okay. If it's like, मैं बहुत lawyer वाली language नहीं, बहुत एकदम layman way में layman जा रहे language, हैं that everyone can understand. Yes. Exactly. कि ये जो property वाली चीजें हैं, money Yes. वाली चीजें Yes. हैं, है ना, वो सारा आता है सिविल लॉयर के अंदर, Okay, fine. है ना. और इनमें भी अब सिविल लॉयर भी प्रॉपर्टी का अलग, है ना. Okay. और मैं ये बोल रही हूँ स्पेशलाइजेशन चीज़ों की और अलग होती है. जैसे कि चेक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी सिविल के अंदर आता है. अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, नॉलेज शेयरिंग जिसे हम कहेंगे. चेक बाउंस होता है, पीपल आर वरिड, दे आर रिलक्टेंट टू फाइल द केस, बट आई एम सेइंग चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल मैटर. आप तो बोलोगे कि गजल आपने बोला मनी है तो सिविल में जाना चाहिए, बट चेक बाउंस का मैटर जाता है क्रिमिनल. इवन यू कैन बी इम्प्रिजन फॉर द सेम, है ना. देयर इज अ पेनल्टी एंड आपको उसमें सबसे क्रूशियल हो जाता है, वहाँ पे समरी ट्रायल होता है. जो हमारे लिटिगेशन, जनरल लिटिगेशंस में सालों लगते हैं, चेक बाउंस के केसेस जो होते हैं वो स्पीडी ट्रायल में जाता है. तो उनका
हमें, मैं ये बोलती हूँ कि चेक बाउंस वाले मैटर्स आपको 100% परस्यू करने चाहिए. Okay, but there was certain changes in the check bounce as well in recent past. या इट टेक्स टाइम, बट कंपैरेटिवली टाइम मैं आपको बोल रही हूँ. Okay. है ना? So normally लोग यही सुनते हैं कि एक सिविल लॉयर होते हैं और एक क्रिमिनल लॉयर होते हैं. ये दो ही सेगमेंट लोगों को ठीक है. समझ में आता है. So now there comes as a corporate lawyer. Yes. Corporate lawyer comes into the picture when it comes about any kind of any financial and the business related things. Any kind of any business can comes under corporate lawyership, right? Correct. If I'm not wrong. Startups, MSME हो, anything. It's corporate word दिया है, but it's like more all allowed for the startups. अभी तक का जो कॉर्पोरेट लॉयरशिप का जो आपको जो जर्नी है, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद आता है जो बहुत फनी हुआ होगा? बेसिकली कॉर्पोरेट लॉयर सुनकर ना, इवन माय फैमिली मेंबर्स, उन्हें ये नहीं पता है कुछ सालों तक चला कि मैं करती क्या हूँ. हाँ, ऑब्वियसली. तो फनी इंसिडेंट ये था कि ये लॉयर है, माय नेबर यूज्ड टू से कि लॉयर है, पर ये तो कभी ऑफिस ही नहीं जाती है, ये तो कभी कोर्ट ही नहीं जाती है. तो फनी इंसिडेंट ये था कि उन्हें लगता था ये तो कहीं पे जॉब कर रही है. यू नो, कॉर्पोरेट लॉयर अपने आप में कितनी वर्सेटाइल चीज़ें करता है वो सिर्फ उसे पता होता है. मतलब आज का ही दिन बताती हूँ. आई स्टार्टेड माई डे विथ IT कंपनी का एक मैंने MSA ड्राफ्ट किया मॉर्निंग में. फिर उसके बाद एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया डेब्ट रिकवरी के लिए, है ना. उसके बाद हम लोग एक ट्रेडमार्क के डिस्कशन में पहुंच गए कि ये नाम है, इसे ट्रेडमार्क करवाना चाहिए या इसमें एक वर्ड ऐड करके उसको ट्रेडमार्क करवाना चाहिए. तो वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू डू एज एन कॉर्पोरेट लॉयर इज जस्ट अमेजिंग. मतलब बहुत कुछ करना होता है. एंड मैं सबसे पहले क्लाइंट को ये बोलती हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. और अगर ऐसा कोई बोलता भी है ना, तो मुझे लगता है हाँ, मतलब यू नो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. इसके बाद ये जो सारे सेक्शंस हैं ना जो मैंने कवर किए, IPR, हमारे यहाँ हमारी फर्म में वी हैव 8 पार्टनर्स इन डिफरेंट सिटीज़. तो इफ़ यूल रीच आउट टू मी कि गज़ल बिजनेस स्ट्रक्चर क्या करें, आई टेल यार आई हैव एन एक्सपर्ट. मतलब मैं जानती सब कुछ हूँ, बट आई हैव एन एक्सपर्ट, लेट्स टॉक टू हिम एंड अंडरस्टैंड दिस. आई हैव एन एक्सपर्ट फॉर ट्रेडमार्क. मतलब ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस होती है. किस क्लास में करवाना है, कितनी क्लासेस में अभी करवाना है, कब फ्यूचर में कितना कराना है, वी हैव ट्रेडमार्क एक्सपर्ट. But in terms of trademark, if I call about that, every single day, every single company owner must be getting at least 3 to 4 phone calls about the trademark. Yeah. There are multiple agencies who are sitting and they are just calling hanky panky and every single day that trademark करवा लीजिए. और सबका रेट अलग अलग होता है. 4,000 से शुरू होता है और सब अलग अलग तरीके से My चलते partner हैं. is one of my Pune partner. He's charging 1 lakh for the filing only. So now what is this then? ये जो 4,000 में जो ट्रेडमार्क हो रहे हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम अपील में भी जाएंगे, जो इनका कॉमन नोट होता है, हियरिंग. यस, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें हियरिंग भी करेंगे. इसमें 2 हियरिंग इन्वॉल्व है, इंक्लूड है. इस टाइप के भी पैकेजेस होते हैं. सो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट 1 लाख रुपीज वाली जो फाइलिंग? सो बेसिकली जो पर्सन हमें कॉल कर रहे हैं, इवन आप बोल रहे हो ना फनी इंसिडेंट्स क्या होते हैं, जब हमने मेरा वाइजली लीगल का हमारा फाइल किया, आई गॉट अ कॉल, मैम आपका आज हियरिंग है, आप इस रेट में करवाओगे, हम आपको गारंटी ट्रेडमार्क करके देंगे. बोला ओके फाइन. मतलब यू नो, क्योंकि ये मार्केटिंग पर्सन, अगर आप उनसे 2 क्वेश्चन पूछोगे ना, दे वोंट बी आंसरिंग. एग्जैक्टली. सो हाउ पीपल विल आइडेंटिफाई दैट हु इज द राइट वन? दैट दे आर द मार्केटिंग पर्सन. जब आप लॉयर से बात करोगे ना, आपको 2 क्वेश्चन पूछना, आपको समझ आ जाएगा कि that person is having the expertise or not. And you know, मैं बोलती हूँ मुझे ट्रेड, if you'll ask me third question, I'll say नहीं, let's go to that particular person, the expert of that particular subject matter, जिसने अपनी लाइफ को 15 years सिर्फ ट्रेडमार्क में एक्सपेंड किया है. तो जब हम बात करते हैं, हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाता है. और ये जो हम वेबसाइट्स पे देखते हैं कि 2000 में किया, 1000 में किया, जस्ट इमेजिन, कैन यू स्पेंड अ हियरिंग in just 2,000 rupees or 500 rupees? नहीं, there is a charge of 1,500 rupees even I know. नहीं मतलब पर हियरिंग मैं बता रही हूँ. लोग बोलते हैं हम तो 500 में कर लेते हैं. Yes, 700 में भी करते हैं. Then क्या एक्सपर्टीज होगा उस पर्टिकुलर पर्सन का? आप समझ रहे हैं ना? So they are saying it is a by chance. If it comes, then only there is a need. So they are basically what they are projecting. They are projecting that we are creating a pool. जैसे 10 लोगों को उन्होंने ये चीज बोला है, 10 लोगों में से एक का आएगा हियरिंग या 2 का आएगा हियरिंग, तो वो 10 का पूल उनके पास है, उनमें से 2 में खर्चा करेंगे. Don't go for that kind of thing. Go for someone जो पूरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके दे. Means I mean to say what I need to understand कि corporate lawyer जब आपके पास है, you should always consult for the trademark as well to that individual rather than going to these kind of phone calls what you are getting on a regular basis. That is what I mean to say and clarify. Exactly.
एंड नॉट अ कॉर्पोरेट लॉयर ना. अब मैं जर्नी वापस से बताती हूँ कि मैं कैसे कॉर्पोरेट लॉयर बनी. जब व्हेन आई कंप्लीटेड माई LLB, आई वाज फ्रॉम दैट इंसिडेंट आई वाज वेरी क्लियर कि सिविल में नहीं जाना है या कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना है. फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड लाइक आई वाज ऑलवेज इनटू ड्राफ्टिंग ना. मुझे लिटिगेशंस में भी ड्राफ्टिंग पोर्शन बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने अग्रीमेंट्स बनाना स्टार्ट किए. आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ना. मतलब बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है. एक आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा हम बोलते हैं, एक साइंस कहते हैं एक अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में. पूरी स्टोरी समझ आनी चाहिए कि बोलना क्या चाह रहा है अग्रीमेंट, है ना. तो जब हमने ड्राफ्ट करना सीखा ना, तो माय फर्स्ट 10 क्लाइंट्स के साथ मेरा फर्स्ट ईयर ना सिर्फ लर्निंग में था कि मुझे आए तो सही अग्रीमेंट कैसे बनाना है. तो पहला साल हमारा लर्निंग ईयर था. जब हम लोगों का फर्स्ट ईयर हुआ और क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप हुआ ना, दे टोल्ड मी गजल मुझे नहीं पता, तो मुझे ट्रेडमार्क करवा के दो. एंड then third client came, Ghazal, we are having a check bounce and you have to help us. You have to help us with the legal notices because you know एक trust build हो गया था उस टाइम तक. तो second year हमने ये देखा कि स्टार्टअप को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो आप बोल रहे थे कि किसके पास जाए. We are trying, you know, to become one stop solution. जहाँ पे you have, I am the face of my law firm, but I have 8 partners who are expert in that particular field. So along with you, you reach out to me, you reach out to our firm senior partners, and we will help you connect with the perfect person for your particular query. I'll be the contact person, but I'll help you with everything in and around. तो आपका लीगल नोटिस हम सर्व कर देंगे, आपके डेप्ट रिकवरी में हेल्प कर देंगे, हम आपके अग्रीमेंट्स बना देंगे, हम आपका बिजनेस स्ट्रक्चरिंग प्लान करेंगे, हम आपका फाइनेंशियल्स प्लान करेंगे, हम छोटी छोटी एडवाइजरी आ रही है कि ये पे नहीं कर रहा है क्या करें, तो उसको मेल करो, है ना. छोटी छोटी चीज़ें मेल पे नहीं हो रहा है, हमें लीगल नोटिस आया कैसे हम रिप्लाई करें या नहीं करें रिप्लाई. तो हमने वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वन स्टॉप सोल्यूशन. तो हमने थर्ड ईयर में जाके हमें लग गया कि यार हमारे क्लाइंट्स को ना ट्रस्ट चाहिए कि यार गजल ये प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू सॉल्व दिस. साइबर क्राइम्स हो जाते हैं तो एंड इट्स इम्पॉसिबल कि मुझे पता हो कि मैं कैसे उसको रिपोर्ट करूं. तो आई रीच आउट टू द साइबर एक्सपर्ट कि लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड हुआ क्या कि जब हमने स्टार्ट किया, हमें इंदौर में ना उस लेवल का ट्रेडमार्क पार्टनर नहीं मिला जिसका एक्सपीरियंस हो. तो वी रीच आउट टू पार्टनर्स इन अहमदाबाद. हमारा NCLT जो था पहले वो इंदौर नहीं था, हमें अहमदाबाद लगता था. तो हम यहाँ बैठे बैठे हम NCLT के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. जो NCLT में बेसिकली जब लिक्विडेशन में हम कहें जो हमारी कंपनीज के जो बड़े मैटर्स होते हैं डिस्प्यूट्स, वो वहाँ जाते हैं, है ना. तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की. ट्रेडमार्क के लिए हमने किया. हम यहाँ बैठे बैठे क्या प्रॉब्लम होती है, वी वॉन्ट टू एक्सपांड इन अनदर सिटी बट वी डोंट नो एनीवन इन द मुंबई. तो हमने वहाँ के लोकल पार्टनर्स, बड़ी बड़ी सिटीज़, मतलब मेनली हमने फोकस किया है कि जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद एंड ऐसे हमने सिटीज़ सिलेक्ट की है जहाँ पे हमारे प्रॉपर हमने पार्टनरशिप कर रखी है उन पार्टनर्स के साथ एंड वी प्रोवाइड सोल्यूशंस इन दैट पर्टिकुलर सिटी. जैसे बेंगलोर हो गया, जहाँ से यू नो इंदौर के स्टार्टअप्स को एक चाहिए कि यार वहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो. यहाँ बैठे बैठे वील जस्ट गिव अ कॉल टू आवर दिल्ली पार्टनर कि यार वी आर हैविंग अ यू नो हियरिंग इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट, कैन यू हेल्प अस विद द सेम. सिंपल. Now the second part. Yeah. Recently you have been selected and elected as a president of POS. So what is that and what is the concept is all about and how much that portion is also important in the corporate life? You know, Wiki is an organization which has more than 3 lakh women connected to it. So Fine. Why I was like choosing 3 lakh women across the globe. Okay. Yeah. It's, you know, a lot of wings are also there with different names, but they comes under Wiki. Okay. Right? So one fine day they wanted someone from, you know, हर state में वो लोग president appoint करते हैं. Okay. I am the president of the Anti-Sexual Harassment Council. Okay. Do you know, to implement sexual, you know, POSH in the companies and the corporates and the business and the startups, this are our role, है ना. And we have a vision कि हम जितने भी स्टार्टअप्स, इट्स बीन फ्यू मंथ्स ओनली कि हम लोग अभी तो हम प्लानिंग ही कर रहे हैं कि हम कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रीच्ड आउट टू आवर MSME मिनिस्टर्स. विकी के साथ हमें प्रॉपर लेटर हेड एंड पावर क्या मिलता है, वी कैन रीच आउट टू गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड देम सजेशंस एंड सी कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द MSMEs. Okay. POSH का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस सेशंस, ट्रेनिंग्स, वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स.
That means if you want to implement that pause, then you need to go through the channel of government only, or No, any no, no. individual also can apply or implement in their own company. सबसे पहले पॉश लॉ पे चलते हैं. Okay. एक लेमन के लिए भी एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, Okay. इवन एट योर हाउस होल्ड, यू Yes, नो, fine. एम्प्लॉय की डेफिनेशन बहुत बहुत ओपन एंडेड है. अब एम्प्लॉय का भी, ये जो आप बोल रहे हैं, एक मिनट आपको रोकता हूँ मैं, ये एम्प्लॉय का भी एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज ये एम्प्लॉयज किसको काउंट करते हैं? Yeah. ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉय हैं, इनका पेरोल होते हैं, उनको एम्प्लॉय काउंट करते हैं, या घर में जो मेड आता है जिनको आप नॉर्मली कैजुअल एम्प्लॉयमेंट गिनते हैं, उसको भी आप एम्प्लॉयमेंट गिनेंगे? इसका परिभाषा क्या है? एक्ट सिर्फ 17 पेजेस का है, बहुत छोटा सा एक्ट है. 17 पेजेस मतलब महाभारत हो गया किसी स्टार्टअप या फाउंडर के लिए. नहीं, आपको पढ़ना ही क्यों है? कॉर्पोरेट लॉयर इज देयर ना, पॉश एक्सपर्ट इज देयर टू गाइड यू विद दैट. पर वो इतना लेमन पर्सन के लिए लिखा है. आप, मैं एक्ट पे ही चलती हूँ, स्टार्ट करिए. एम्प्लॉय कौन होगा? वो पर्सन जो आपके यहाँ आपको वो सर्विसेज दे रहा है, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कंसल्टेंट हो, सब कुछ उस चीज में कवर्ड है. इवन आपके Okay. हाउस होल्ड जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें कवर्ड है. अगर So 10 से ज्यादा is है. there any bifurcation regarding that company employment policy and this kind of employment? No. Because company में लोग बचते हैं employee दिखाने में because there is a PF clause and other things. So what is that? सी, हम गिन रहे हैं, एक्ट बहुत अलग बात बोल रहा है. 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहां पे कमिटी होना मैंडेटरी है. Okay. पॉश तो सब जगह इंप्लीमेंट करना है. जब हम पॉश पॉलिसी जो बेसिकली हम वाइसली लीगल में ड्राफ्ट करते हैं, वो 40 पेजेस की ड्राफ्ट करते हैं. तो उसमें हम ना बहुत क्लियरली समझाते हैं कि यू नो किसे हम कहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट. Okay. और ये उन सारे जगह पे लागू होता है जहाँ पे 10+ employee is working. यस, Whatsoever format it is. Casual employment, permanent Yes. employment, PF कटता है नहीं कटता है, it doesn't matter. If If 10 people are working under one roof for a single cause, कमिटी. okay, ठीक fine. है. ये एक्ट किन किन को प्रोटेक्ट करता है? हमने बात की 10 या मोर एम्प्लॉयज में ये मैंडेटरी है. Yes. किन को प्रोटेक्ट करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी. इफ यू डोंट कंप्लाई विद देम यू हैव fine over also there. Even a Okay. huge compensation, I won't name the company because you know, because of the confidentiality reasons, there has been a company, नहीं बोलूंगी, organization in Indore which has paid 25 lakh rupees compensation just because they don't had a committee. Can you believe that? वो कमिटी नहीं होने के लिए, और लोगों को ये कमिटी होना है यही नहीं पता है. Yes, true. इस कमिटी में को हम अच्छे से समझेंगे. पहले हम समझते हैं कि किनको ये लॉ प्रोटेक्ट क्या करेगा. है? हाँ, yes, exactly. पॉश लॉ की डेफिनेशन समझते हैं. Yes, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? Mhm. इफ यू आर लुकिंग एट मी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल ना, Mhm. एक्ट ने ये बोला है, यू कैन, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन. Okay. प्रोटेक्शन इस एक्ट में सिर्फ विमेंस को है, बट हम वाइजली लीगल में हमारे क्लाइंट्स को यही बोलते हैं, लेट्स टेक इट अ ह्यूज कवरेज. कोई भी जेंडर हो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज इट्स टाइम हैज गोन जहाँ पे सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट. आजकल के हवा थोड़ी सी उल्टे पे चल रहे हैं. एग्जैक्टली. आप बिलीव नहीं करोगे, 60% ऑफ माई केसेस दैट आई हैव हैंडल्ड इन द पॉश वो फॉल्स कंप्लेंट्स थी. Because maybe. people came to know कि 25 lakh rupees compensation we are getting, but they are not getting कि अगर ये complaint false prove हुआ ना, you can be terminated. We have terminated many females from the organization. तो इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है ना. पॉश 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 चल रहा है, इतनी पेनल्टीज है, इतने कंपनसेशन मिल रहा है, लेट्स फाइल अ केस. True. तो हम उन कंपनीज में जाते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं उनके एम्प्लॉयज को, यू नो. उसके बाद ये जो रेट थे, नंबर ऑफ केसेस, वो इतने कम हो गए बिकॉज पीपल आर अवेयर. यू नीड टू हैव अ कमिटी. कमिटी में कुछ इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं और एक एक्सटर्नल मेंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं TCS की एक्सटर्नल मेंबर हूँ, टू गिव द फेयर आइडिया. बिकॉज क्या होता है ना, एम्प्लॉयज आर वेरी रिलक्टेंट टू शेयर देयर थिंग्स विद देयर इंटरनल टीम, यू नो, कि यार ये क्या रहेगा. दे रीच आउट टू वी एज एन एक्सटर्नल मेंबर हेल्प देम आउट कि बी फील फ्री एंड स्पीक आउट व्हाट हैज हैपेंड विद यू. तो पॉश एक्ट में बोलते हैं, अरे वी डोंट हैव अ फीमेल एम्प्लॉय, व्हाई वी नीड टू हैव अ पॉश लॉ. हम क्यों करें, हमारे यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स ही नहीं है. सी, पॉश एक्ट में लिखा है किसी के साथ भी हो जो आपसे रिलेटेड हो. अगर आपके वेंडर आया है या आपकी स्वीपर है, आपकी कोई क्लाइंट आया है इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी हुआ है, दैट ऑल्सो फीमेल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड.
we have one of our biggest client, they are like top 5 in the rice brain manufacturing. वो CSR projects चलाते हैं, and like they are having a great net profits and all, है ना. तो वहाँ पर when I called her, she said I am the CEO and I am only the female ghazal over here. हम क्यों implement करें? And I told her कि there can be a chances, you know, that sweepers are there. बोले हाँ, they are females. मतलब there are many vendors who are female. Like you need to protect them also. एंड एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा है कि आपके एम्प्लॉयज को ही प्रोटेक्ट नहीं करना, उन वेंडर्स, क्लाइंट, कंसल्टेंट, सबको प्रोटेक्ट करना है. So this is the law. This is the law. Basically. So Basically. now what are the repercussions and what are the implications of it? Repercussions, I told you, penalties है. If employer is doing, they can be terminated from the job. They can be removed. Their आज के promotion तारीख में can ये be बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो बहुत वुमेन ज़्यादा. प्रोटेक्शन लॉ जितने भी है, इसका यूज से ज़्यादा मिस यूज हाँ, ज़्यादा हाँ. देखा जा रहा है, एंड देयर आर Yes. मल्टीपल ऑफ द केसेस. Yes. और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास कोई सुनवाई नहीं है, और लोग सबसे पहले उनको गलत मान ही लेते हैं पहले ही. सो कुछ हो ना हो, बदनामी तो हो ही जाता है, बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएगा, वो समय तो वापस कभी आना नहीं है. सो हाउ डू यू जस्टिफाई अबाउट ऑल दिस बदनामी व्हाट? जो पॉश की पूरी इंक्वायरी होती है वो 100% कॉन्फिडेंशियल होती है. मतलब लाइक इफ वी आर डूइंग एनी पॉश मीटिंग टुडे हियर, इवन द आउटसाइड पर्सन वोंट कम टू नो. मैं ऐसे कैजुअल वेयर्स में जाऊंगी कि मैं यहाँ पे विजिटर आई हूँ, आई एम हियर टू गिव यू लीगल एडवाइस, एंड इफ कोई मुझे जूस देने भी या टी देने भी आ रहा है, हम लोग बात करने लग जाएंगे नॉर्मल, और वी आर कंडक्टिंग अ इंक्वायरी. 100% ओथ्स आर साइंड, डॉक्यूमेंट्स आर साइंड कि अगर मैंने भी ब्रीच किया, फॉर एग्जाम्पल यूँ हम बात करते हैं, अरे आज मुझे पॉश केस आ गया इस पर्टिकुलर कंपनी में, इफ आई शेयर विद माई हस्बैंड ऑल्सो ना, आई हैव अ पेनल्टी टू बी इम्पोज. तो पहली चीज़ ये, डरो मत, क्योंकि एक्ट में ये चीज़ें सोची गई है. कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत प्रोटेक्ट होगी आपकी, किसी को पता नहीं चलने वाला है कि आपके साथ ये हुआ है. सेम गोज विद अ मेल, कोई भी पार्टी इसके बारे में पता नहीं होता है. तो जो डर है कि यू नो फीमेल, एक ऐसा हुआ केस, फीमेल ने रात को भेजा, एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज कॉलिंग हर, और द कमिटी चेयरपर्सन वाज कॉलिंग हर, मैम हमें नहीं करना है, मेरे फादर ने बोला अगर इफ़ यू विल परस्यू दिस केस वी वोंट लेट यू गो टू द ऑफिस. तो हम बोलते हैं वी टॉक टू दैट पर्सन ऑल्सो कि ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल होगा, कैजुअल आएंगे, बैठेंगे, पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, प्रोसेस मेंटेन्ड है, मेंशन्ड है, रिपोर्टिंग होगी, MOMs होंगे, साइनिंग होगी. इतना स्ट्रिक्टर चीज़ें होती है कि यू कांट बिलीव. मतलब हम यही कहते हैं कि वाई नीड टू हैव अ लॉयर इन योर पॉश कमिटी. सब बोलते हैं कि किसी NGO पर्सन को ले लो, सोशल पर्सन को लो. हम बोलते हैं जिस पर्सन ने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कैसे विटनेसेस को कलेक्ट करना है, कैसे एविडेंस को कलेक्ट करना है, कैसे पूरा प्रोसेस चलाना है, वो नॉन लॉयर पर्सन को पता ही नहीं हो सकता है ना. इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू. बोलते हैं कि जो रेप होते हैं दे आर इन द क्लोज्ड रूम्स, यू नो, तो हम उसे प्रूव कैसे करेंगे? उसके लिए हम ना एक कोलैबोरेटिव एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं. क्या टाइमिंग एंट्री हुआ, क्या एग्जिट हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा, मेंस रिया, मतलब उसका माइंडसेट क्या रहा, ये बहुत सारी चीज़ों, एक चेन को चलाते हैं और हम फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो ट्रस्ट योर IC जो इंटरनल कमिटी है, उसमें ट्रस्ट जो करो. पॉज का जो रूल्स है और जो भी इस लॉ जो भी कहता है, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई अगर गलत तरीके से किसी को देख रहा है तो ये भी इट ऑल्सो कम्स अंडर दैट रूल. नाउ हाउ विल यू प्रूव दैट कि किसने कैसा क्या देखा? ये तो आप कभी भी इसका मिस यूज कर सकते हैं अगर आप Yes. इस तरीके से है तो. Yes. देन हाउ यू actually clarify this, Yeah. and how you identify कि that company is maintaining that or not? जब IC कंपनी हो, जो IC जो कमिटी बनी है, उसकी भी लॉ में ट्रेनिंग मैंडेटरी है. जो एक्सटर्नल पर्सन है, हम लोग ना, व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन एंटर्स द रूम ना, हम उससे इतने सारे क्वेरीज, हमारा सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उससे रिटर्न में स्टेटमेंट लेते हैं, ओरल में स्टेटमेंट्स लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, विटनेसेस को कलेक्ट करते हैं कि यू नो इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टच्ड योर दिस थिंग, कोई ना कोई होगा जिसने ऑफिस पे देखा होगा, सुना होगा. एक दिन में चीज़ें नहीं होती है. और हम, अब आप बोल रहे हो कि अरे सिर्फ देखा ही तो है. इफ़ यू डोंट रेज योर वॉइस दैट पर्टिकुलर वे, यू शुड वेट फॉर द रेप टू हैपन. पनिशमेंट का बहुत छोटा हो जाएगा, लाइक हम उसे एक एपोलॉजी लेटर का कहेंगे या उसे वार्निंग देकर छोड़ देंगे. पनिशमेंट का डिफरेंस होगा, बट सीरियसनेस उस मैटर को इतना ही लिया जाएगा. बहुत एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था जहाँ पर एक टीम मीटिंग में सीनियर ने अपनी फीमेल जूनियर को बेबी बोल दिया था,
एंड शी मेड अ कंप्लेंट टू अस. तो जो दूसरा आईसी मेंबर्स थे या जो दूसरे मैनेजमेंट थे कंपनी, गजल यू आर टेकिंग थिंग्स एनी वे राउंड, ये कैसे हो सकता है? मतलब लॉ ये बोल रहा है अनवेलकम एक्ट, है ना. इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल, मैं ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करने वाली हूँ, बट दैट पर्टिकुलर शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट. You should consider what you're saying and what you're doing, and we can't wait for extremes to happen. Are you getting my point? तो बस पनिशमेंट का डिफरेंस है, बट लॉ उतना ही सीरियस है. और नेगेटिव यूज पे ज़्यादा होता है. तो हम जब केस पूरा चलाते हैं ना, हमें चीज़ें वहाँ एविडेंट होती है, क्योंकि हम उसका बहुत डीप एनालिसिस करते हैं. रिटर्न स्टेटमेंट, ओरल स्टेटमेंट, विटनेसेस, एविडेंसेस, जब इनको एग्जामिन करते हैं ना, तब हमें क्लियर पिक्चर समझ आ जाती है. Now every company is having certain certification and certain applications approved जो उनको पोस्ट करके रखना पड़ता है या जो डिस्प्ले में करके रखना पड़ता है कि वी आर हैविंग दिस. सो ये जो पॉज की आप बात कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कंपनी ने इसको लागू किया कि नहीं किया? और अगर कोई नहीं कर रहा है उसके लिए क्या है? जैसे मान लीजिए पीएफ एक अलग डिपार्टमेंट है, वो कभी कभी छापे मारते हैं, वो कभी कभी हर जगह पे जाकर विजिट करते हैं और जाके वहाँ पे कागज चेक करते हैं. क्या ऐसा भी कुछ आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं कि व्हाट यू हैव ए चेक पॉइंट दैट उन्होंने एप्लीकेबल किया कि नहीं? कंप्लायंसेस पॉश में ही बहुत सारे, है ना. वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है. वही अगर हम बात करेंगे तो मैं 1.5 घंटा 1 घंटा हम लोग वी जस्ट टॉक अबाउट पॉश ओनली, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट मैं ये बताऊंगी कि हर सिटी में भी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी में नहीं है, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, टू यू रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ही इज, उसका चेयरपर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, काइंड ऑफ पर्सन लाइक दैट. हमारी हर सिटी में भी एक लोकल कंप्लेंट कमेटी, रीच आउट टू दैट एंड दे विल एडवाइस. और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं. एक्ट इज 2013 में आया है. जो पॉश एक्ट है बहुत नया है, अभी तक लोगों में इतने साल बाद भी अवेयरनेस नहीं आई है. तो बेसिकली हम विकी के थ्रू वो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि ये लोगों को पता हो कि लॉ क्या है, एक्ट क्या है, क्या फ़ायदा है और क्या रिपरकशंस है उनको नहीं होने में. अब ये जो विकी है, इसका क्या रोल है, क्या डिफाइन करते हैं ये, and what is your present responsibility and what is your vision to take it forward? तो बेसिकली ना विकी विमेन के जो कॉर्पोरेट्स हैं या बिजनेसेस हैं उस विंग को वो फोकस करता है. दे आर ओनली प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स ओनली. और उसमें ना एंटी सेक्सुअल हरासमेंट बिजनेसेस में बहुत क्रूशियल हो गया है. माई रोल हियर इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस, टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कंपनीज. उन्हें एक जो उनकी टीम है, उनके जो एचआर्स है, उनके साथ बैठ करके ग्रास रूट लेवल पे उन्हें लॉ समझाना है. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, शायद इससे भी और बेटर वे में हम लोग उनका पूरा एक अवेयरनेस सेशन लेकर के, ट्रेनिंग लेके, वेबिनार्स लेकर के हम उनसे मिलते हैं और वी ट्रेन दैम फॉर दिस. ओके. एंड हाउ यू वांट टू टेक इट फर्दर? या माय विजन इज कि हम जितनी भी एटलीस्ट हमारे वी हैव लाइक मोर देन 550 कंपनीज एज आवर क्लाइंट. तो फर्स्ट ईयर हमारा जो विजन है हमारा ये है कि वी विल स्टार्ट विद ऑलरेडी कंपनीज वी आर कनेक्टेड टू. ट्रू. Then second step is like we reach out to the MSME minister. We are planning recently कि हम उनसे मिल करके उन्हें हम suggestions देने वाले हैं कि this is this and this is the best way कि हम इसको कैसे implement करवाएं, इस process को ना hassle free बनाएं. मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं लोग का सबसे बड़ा कारण है गजल, इतना टाइम किसके पास है कि इसको पूरा इतने compliances करे. तो we are making that सब कुछ बहुत आजकल टेक फ्रेंडली हो गया है. तो वी आर मेकिंग एवरीथिंग ऑन द गूगल डॉक. हम FAQs दे रहे हैं, हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, हम बुक्स दे रहे हैं, हम रीडिंग मटेरियल्स दे रहे हैं, हम पॉलिसीज़ बना कर दे रहे हैं, हम उनके साथ बैठ कर के उनकी कमेटी बना रहे हैं. तो ये हमारा विजन है कि हम थाउजेंड्स ऑफ कंपनी में पॉश को इम्प्लीमेंट करवाएं. नॉट अ कंपनी, हॉस्पिटल्स कहें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कोई भी हो. सिंपल. जब हम कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में डील करते हैं या पढ़ते हैं, लाइक जैसे मेडिकल में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ में ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी तो नहीं है. हाँ. या आपको हर चीज़ में एक शक होता है कि ये खाने से ये हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसे पढ़े हैं. Correct. तो नॉर्मल जिंदगी में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? बिकॉज हर चीज़ को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं. करेक्ट. अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो. करेक्ट. तो हाउ यू टेक थिंग्स नॉर्मली कि ये ऐसा कर रहा है, ये कितनी बड़ी गलती है, बट लोग रेगुलर वे में करते हैं ऐसे. बेसिकली ना आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन. आई एम नॉट, जैसे फर्स्ट टाइम कोई मिलता है, शी इज सो यंग टू बी कॉर्पोरेट लॉयर. ये कॉर्पोरेट लॉयर है क्या?
तो पहले तो ऐसा होता है योर नॉलेज स्पीक, योर एक्सपीरियंस स्पीक, वेरी ट्रू. है ना, रादर देन लुकिंग एट दैट पर्सन एंड हम्म. प्लानिंग, है ना. तो जब हम किसी कॉर्पोरेट लॉयर की बात कर रहे हैं, इट स्टार्ट विद द ट्रस्ट. एंड आई एम नॉट इनटू लाइक वो हार्डकोर पर्सन. आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई डू एंकरिंग, आई अटेंड पार्टीज. तो उस चीज़ को ना जब हम वर्क कर रहे हैं, भयंकर काम कर रहे हैं हम लोग. 20 आवर्स वी वर्क, बट व्हेन वी पार्टी मोर हार्डर. हमने उस कल्चर को ना बहुत चेंज कर दिया है टू लुक. वैसा बोरिंग प्रोफेशन नहीं बचा है अब. सिंपल सी बात है, वी आर हैविंग मोर फन दैन दो टिपिकल लॉयर्स वाली चीज़ें होती हैं. आप लोगों के लिए फन है, लेकिन लॉयर के नाम से लोगों के बहुत डर लगता है लोगों को. डिपेंड. मैं बोलती हूँ मुझे डॉक्टर्स के पास में जाने से भी डर लगता है. डॉक्टर, लॉयर एंड पुलिस, ये तीनों के मतलब जितने आप दूर रहो उतने ही अच्छा है. दैट इज द लेमन्स वे ऑफ लिविंग लाइफ. या अगर इन तीनों के पास आपको जाना पड़ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड मैसिवली रॉन्ग. but not So that is the concept that has been developed in the society. goes with the corporate lawyer. Yes, that is true. That is a super specialization that is came in today's time. Correct. It was not there. Lawyer means lawyer. Lawyer means मतलब कोई criminal है. Correct. See, मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ, there are many people around me who think कि यार बड़ा डर लगता है इनके पास. But we have created that environment and change starts with us only. है ना. हम मस्त बातें करते हैं, हमारे क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं जहाँ पे दे कैन फ्रीली टेल मी. मतलब स्ट्रगल क्या होता है कि जब मैंने अपना सेकंड अग्रीमेंट किसी को दिया एंड ही वाज लाइक गजल, ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें सही में ना किसी मुंबई की फर्म से बनवाना था. ये होता है, मतलब इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आपको जो मैंने अग्रीमेंट दिया है वो नहीं सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है. होता था, मतलब नॉट नाउ बिकॉज आफ्टर सो मेनी ऑफ ईयर्स, बट ऐसा होता है. इनिशियली वो स्ट्रगल था कि क्लाइंट बोलता था अपन रहने देते, नेक्स्ट टाइम वर्क करेंगे, आपसे नहीं हो रहा. हमने एक ये चीज़ स्टार्ट की, गाली खाएंगे हम तब तक. आप नहीं बोलते हो ना कि गज़ल अग्रीमेंट अच्छा है, हम तब तक उस दिन तक काम करेंगे साथ में. क्लाइंट का फ़ोन कभी भी नहीं होता है कि हम नहीं उठाते हैं, है ना. वी रिस्पॉन्ड. मतलब लॉयर सुन के लोग बोलते हैं अरे 1 महीना हो गया उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया. ये प्रॉब्लम जो थी, व्हाट डिफरेंस आई हैव क्रिएटेड. बहुत इसी वजह से लोग डिस्टेंस कर देते हैं अपने. करेक्ट. बिकॉज दीज आर द स्मॉल इश्यूज व्हाट मेक यू कीपिंग डिस्टेंट योरसेल्फ कि भाई इनके चक्कर में पड़ोगे तो परेशानी होना. करेक्ट. सो दैट इज इट. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो हो सकता है करो. वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम कोर्ट नहीं जाए. बीइंग अ लॉयर मैं एडवाइस ये करती हूँ. मैं पब्लिकली ये चीज़ बोल रही हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज मैंने वो चीज़ें देखी है. है ना. मैं घर में भी देखती हूँ, मेरे दादाजी, मैं फादर इन लॉ. एंड आई गेस दिस इज द राइट काइंड ऑफ सजेशन दैट एनी लॉयर शुड गिव टू द क्लाइंट कि कोर्ट में नहीं जाना पड़े, आप उससे पहले खत्म करो. बिकॉज वंस यू एंटर इनटू द कोर्ट, फिर क्लाइंट का भी और सामने वाले का भी, दोनों का फाइनेंशियली भी ड्रेनेज होना है. टाइम तो जाना ही है एंड देयर इज नथिंग, देयर इज नोवेयर दैट यू आर रीचिंग. मेनी टाइम दे आर डूइंग, अरे गजल करना है उसको, हमें लेसन सिखाना है. मैंने लेसन सिखाना है. यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर टाइम. वेरी ट्रू. मुझे आपके साथ बैठ करके पूरा केस बनाना पड़ेगा. व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? लेट्स सिट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड नेगोशिएट. लोग इसको भी प्राइड समझते हैं कि कोर्ट में लेके गए उसको. हाँ, रादर हमने कोर्ट में घसीट लिया, तो दैट इज अ प्राइड दैट हमने उसको कोर्ट में घसीट लिया. आप देखेंगे उसको. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी, एनर्जी. सिंपल. आप ये नहीं समझ रहे हो. मतलब बहुत सारे सीईओज आते हैं, अरे गजल आज हमने आवाज नहीं उठाई साइबर क्राइम के अगेंस्ट, तो कल कौन उठाएगा? मतलब गो फॉर इट. दे परस्यू इट फॉर 10 days विद दैट पर्टिकुलर zeal एंड गजल अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है. मतलब आई टेल यू कि डोंट, जहां तक हो बात करके चीजें रिजॉल्व करो. Now in the final lap, we will try to discuss about your Wisely Legal company. Yeah. That what is Wisely Legal, and name is very catchy, Wisely Legal. So ये नाम का भी उत्पत्ति बताइए कि आपने कैसे ये नाम सोचा, और ये Wisely Legal क्या क्या चीज़ें करते हैं, and how normal people and from anybody who is operating any firm, any startup, they can get help from these Wisely Legal. Yeah. So I'll start with my husband, who is an CEO of an IT company. He used to look into the legal things also. Okay. So when I started, one of the companies I was serving was his company. And I came to know the ground reality. मतलब he used to freely tell me, यार गजल सच में क्या हो रहा है ना, हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं पर हमारा पैसा नहीं आ रहा है. है ना. हम लोग क्या करें प्रैक्टिकली कि हमारा वी डोंट अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोसेस, बट वी वांट कि सोल्यूशन हो.
कि रिकवरी हमारा आ जाए बस। रिकवरी आ जाए। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, हमने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ फोकस किया। वी बिलीव इन द ट्रस्ट, कि ट्रस्ट अस, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वी हैव मल्टीपल पार्टनर्स, वी हैव एक्सपर्ट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, ट्रू। बस आई एम अकाउंटेबल फॉर माई पार्टनर्स। यू कैन रीच आउट कि गजल उसने मुझे नई ट्रेडमार्क फाइल करके दिया है, यू कैन से थिंग्स टू मी, आई विल गेट इट डन, यू नो, बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। थर्ड इज वी विल नेवर इग्नोर यू। फोर्थ इज वी बिलीव इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि वी अंडरस्टैंड कि यू आर एट द स्टेज जहाँ पर आप स्टार्टअप हो, फीस सबसे बड़ा पॉइंट है। यस। कोविड के टाइम क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस नहीं कहेंगे, प्रोफेशन या सर्विसेज बूस्ट हुई, क्योंकि उस वक्त जो मेन मैनेजमेंट था, डिसीजन मेकर था, वो बहुत फ्री थे, उन्हें बिजनेस नहीं करना था। तो उन्होंने बोला चलो गजल लीगल में अग्रीमेंट्स बनाते हैं, ये चीज़ें हम अभी कंप्लाई करते हैं। तब से जो अवेयरनेस स्टार्ट हुई है वो अभी तक है कि नहीं, लेट्स डू, है ना। और जब ये चीज़ें वाइजली लीगल में आई तो माई हस्बैंड सजेस्टेड कि यू शुड, ही सजेस्टेड द नेम वाइजली लीगल, ही सेड यू शुड चूज योर लीगल थिंग्स वाइजली फॉर योर बिजनेस। बेसिकली बिजनेस से प्रैक्टिकली लीगल इम्प्लीमेंट मत करो। ये नहीं है कि अरे वो कंपनी में 10 अग्रीमेंट्स है, हम भी 10 बनाते हैं, जो आपके लिए सही है ना वो इम्प्लीमेंट करो। चूज योर बिजनेस वाइजली, चूज योर लीगल थिंग्स वाइजली, सिंपल। And when you started this Wisely Legal? 2018 when I was doing my masters in the corporate law. I started साथ में because मुझे पता था कि it takes years of, you know, to learn, गिरना संभलना, feedbacks, ये सारी चीज़ें, it takes time, it comes with the knowledge and expertise. So with corporate law I was pursuing and उसी के साथ हमने start कर लिया। And presently how many clients you are handling in Wisely Legal? Yeah, more than 550. That's a really great हैंडलिंग number. कहें या उसे सर्व कहें, यू नो, बिकॉज बहुत डिफरेंट मॉडल्स है। एक छोटा सा 5 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी भी है, तो हमारे पास 500 वाली कंपनीज भी है। TCS देखें तो लेग्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वाली कंपनीज भी है। True. तो वो वैरायटी है, तो उसी हिसाब से हम लोगों का प्लानिंग चलता है। So Wisely Legal also serve these small companies as a part-time services as well. Means Yes. as and when it is required. Correct. You are the legal advisor for them. Correct. But as and when they are requiring your services, you will be coming into play, Correct. and then otherwise you are in Yes. dormant Yes, stage, yes, right? yes. That is also your doing. दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग दैट हैव वर्कड फॉर अस, बिकॉज Okay. यू नो वो साल भर एक लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, Yes, एक true. corporate lawyer को। Yes, yes. तो yes. उन्हें ये पता है कि यार मुझे लीगल नोटिस भेजना है, मुझे गजल को सिर्फ मेल करना है और बात भी नहीं करनी, वो सर्व करवा देंगे। That is true. We have a team, we have a people who manages, who stay in contact with them, you know, to provide that particular process। काफ़ी हैसल फ्री होता है। हम लोग पूरा गूगल डॉक पे वर्क करते हैं, वर्किंग हैज़ टोटली शिफ्टेड। रिमोट वर्किंग करते हैं, गूगल डॉक पे हम डॉक्स बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं, मेल पर चीज़ें देते हैं। तो यू नो टेक फ्रेंडली हमने इस पूरी प्रोसेस को बनाया है। जब हम किसी लीगल चीज़ों के ऊपर काम करते बात करते हैं, वहाँ पे हर एक वर्ड्स भी बहुत हेवी होता है कि हाँ, कौन सा हाँ। वर्ड की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेजिंग क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है। जब आप एक नॉर्मल इंसान हैं, यू आर ए नॉर्मल इंडिविजुअल, हाउ यू बैलेंस आउट योर दिस थिंग्स? यू नो हम ये बोलते हैं कि कस्टमाइज अग्रीमेंट की बात वही आती है। हम ये पूछते हैं आपको कैसा अग्रीमेंट चाहिए, क्या आप ये चाहते हो कि वो एक लेमन लैंग्वेज में हो, कि आपके जो क्लाइंट है उन्हें एक्चुअली समझ में आए, है ना। True. जो आपके को फाउंडर है उसमें ये बहुत छोटी सी बात लिखी होगी कि ये जो होगा ना बिजनेस का जो रॉ मटेरियल परचेज है वो यू विल बी डूइंग दैट, तो हम उसे वैसे ही वर्ड्स में लिखेंगे। एक कॉमा कैन डू अ ब्लंडर। Yes, yes. In legal formation of sentences, या every single comma, full stop matters much Exactly. more thing Exactly. that you normally do. तो पूरी प्रोसेस होती है। हम लोग एक ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट बन रहा है, वी हैव अ प्रोसेस। कोई भी हो, वी हैव टू फिल द क्वेश्चनर। आप क्वेश्चनर भेजोगे, हम उस पर रिसर्च करेंगे, आपके बिजनेस को समझेंगे और फिर एक फर्स्ट ड्राफ्ट शेयर करेंगे। आप उसका अपना फीडबैक दोगे, उसमें जितनी बार चेंजेस करना है हम करेंगे, एंड देन वील ड्राफ्ट अ मास्टर अग्रीमेंट। मास्टर अग्रीमेंट इतना सिंपल होगा कि आपके यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय उसको ऑपरेट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। दिस इज़ आवर फोकस। नाइदर कि यार हर एक अग्रीमेंट के लिए यू हैव टू कॉल अस कि यू टेल अस कि यार इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें या इसको हम कैसे फिल अप करें। दिस इज़ आवर फोकस। That is really great, and this was Yeah. a very wise discussion rather in
Wisely Legal Yeah. being with you. And I guess maximum of the people can understand that how these things are very, very important. And if they want, they can get services from your company as Yeah. well. And what was your experience in this discussion? How you find it? That is it useful Yeah, and you find it well? I felt like I'm talking to a friend. सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे सबसे अच्छा ही लगा कि ये रॉ है और I have to speak to your audience who are also very raw. I'm not talking to the subject matters expert या मैं कहीं वेबिनार में नहीं हूँ जहाँ पे मुझे I have to think about my words, कि I have to talk about the harmonious construction, I have to talk about notwithstanding anything contained here. तो काफ़ी लेमन लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. So thank you very, very much for giving us your Yeah. time to come our studio, and thanks a lot for being a part of our show. Thanks a lot. Thank you so much for having me. Means a lot, yeah. So this was the podcast with Ghazal Daga, who is the corporate lawyer and also operates Wisely Legal. I hope this podcast has given you a lot of insights about legality and how you should be keeping your legal things and legal document intact for your peace of mind and for the sake of your company, and how these legal documents and your legal formats are really helpful in your day-to-day basis in operating the company. So thank you very much for watching this podcast, and if this podcast has given you any insight, please like this video and also subscribe this channel by the name of The Spotlight Beyond Profession. And you can also subscribe our business news channel by the name of The Spotlight News, where you cover business bites Monday to Friday at 7 p.m. and Quick Bite Monday to Friday at 9 p.m., where you cover business news from corporate and startup world. So again, thank you very much for watching the podcast and signing it off.